Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with a very new topic which you haven't done before. And this is our chapter number 13 and it is called temperature. Temperature का मतलब क्या हुआ? तापमान, है ना? तापमान मतलब टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, टेम्परेचर ऑफ अ रूम. इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है. तो अभी तक जितने भी हमने मेजरमेंट्स सीखे हैं उससे हमें हाइट, वेट, कैपेसिटी, टाइम ये सब मेजर करना आता है. बट अभी तक हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं सीखी जिससे कि हमें कोई भी चीज कितनी हॉट है या कोल्ड है ये हम मेजर कर सके. ऑल्दो हम लोग अगर टच करते हैं किसी भी चीज को हमें हॉट या कोल्ड का पता चलता है, बट दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बाय टचिंग एनीथिंग. बिकॉज हो सकता है कि कोई चीज मुझे बहुत कोल्ड लग रही हो लेकिन किसी और को नहीं, या किसी और को कोई चीज बहुत हॉट लग रही हो और मुझे ना उतनी लगे. सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दैट हाउ हॉट और कोल्ड दे कैन फील. दैट्स डिपेंड्स अपॉन देयर ओन बॉडी टेम्परेचर, राइट. सो यही है हमारा आज का टॉपिक टेम्परेचर. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद इट. Now, till now we have learned various types of measurements such as length, weight, capacity and time, but none of these measurements can be used to find out how hot or cold a thing is or an object is. When we touch any hot or cold object, we can make out which is hot and which is cold. But the question is how much cold or how much hot. At the same time, it is difficult to know that the exact level of hotness or coldness by touching because the sense of touch varies from person to person. To find exact answers, we need some measures of hotness and coldness. And what are the measures of hotness and coldness? There are instruments by which we can measure the temperature and that instrument is called thermometer. बहुत बारी आप लोगों ने अपने घर में thermometer देखा होगा, उसका नाम सुना होगा. Whenever we feel feverish, we use thermometer. We put thermometer in our mouth or in our armpit to measure our body temperature, whether our body temperature has risen above the normal body temperature or not. If yes, then we have a fever. If not, then our body temperature is normal. So temperature is the measure of hotness and coldness, है ना. मतलब कि क्या हुआ, जितना कम टेम्परेचर है उतना ही ऑब्जेक्ट क्या है, ठंडा है, कोल्ड है. और जितना ज़्यादा टेम्परेचर है इसका मतलब कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो हॉट है. So temperature is the measurement or measure of hotness or coldness of an object with reference to some standard values. The instrument which measures the temperature of a body is known as thermometer. Thermo is the spelling, but we call it as thermometer. So it's thermometer. ठीक है? All right. So आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं मोबाइल पर, अपने इंटरनेट पर, न्यूज़पेपर में कि डिफरेंट एरियाज के टेम्परेचर क्या क्या हैं वर्ल्ड में. नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से होता वो थर्मामीटर है उसका टेक्निकल नाम होता है क्लिनिकल थर्मामीटर. सो मेडिकल थर्मामीटर इज ऑल्सो नोन एज क्लिनिकल थर्मामीटर एंड इट इज अ थर्मामीटर यूज्ड टू measure body temperature. Most of these thermometers have two scales. कौन से two scales होते हैं? Degree Fahrenheit and degree Celsius. ठीक है. So Celsius scale and Fahrenheit scale दोनों ही scale होते हैं. And the Celsius scale runs from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. The temperature of a healthy human body is 37 degrees Celsius or 98.6 degree फ़ारेनहाइट. ठीक है. तो आपसे ही पूछा जा सकता है कि नॉर्मल जो एक बॉडी होती है, हेल्दी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, उसका टेम्परेचर क्या होता है. सो अगर हमें सेल्सियस में बताना है तो इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. द टिप ऑफ द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इनटू द माउथ अंडर द टंग. टंग को रोल करके टंग के नीचे हम लोग थर्मामीटर रखते हैं ताकि सही टेम्परेचर आए, और अंडर द आर्मपिट फॉर अ मिनट. देन नंबर अगेंस्ट द पॉइंट एट विच द मर्करी
column stops rising further indicates the body temperature of the person. तो इसका क्या मतलब है कि ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसमें एक लिक्विड होता है, लिक्विड मेटल होता है विच इज मर्करी, और जो मर्करी है वो जहाँ तक राइज अप कर जाती है मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर उतना है. सो सपोजिंगली अगर जो मर्करी है वो राइज करी यहाँ तक, सो दैट मीन्स दिस इज जस्ट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. अगर ये 37 तक राइज करी तो मतलब ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है. अगर अब ये इससे ऊपर यहाँ तक चली जाती है मतलब कि बहुत तेज फीवर है. So this is how we see the body temperature through a thermometer. Now ये ही जो यहाँ पर वर्ड्स में दिया है ये आपको एक फ्लो चार्ट में दे दिया गया है कि टेम्परेचर क्या होता है. इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी. टेम्परेचर कैसे मेजर होता है? थर्मामीटर से. थर्मामीटर दो तरीके के हो सकते हैं. एक जो थर्मामीटर है वो कौन सा थर्मामीटर यूज होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, और वो क्या मेजर करता है? बॉडी टेम्परेचर. जो थर्मामीटर होता है वो उसके अंदर दो स्केल्स होते हैं, और एक स्केल होता है सेल्सियस स्केल और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल. सेल्सियस स्केल कैन बी कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट कैन बी कन्वर्टेड टू सेल्सियस द वे वी डू विद अदर standard unit of measurements. Now temperature scales. Each thermometer has a scale. Two different temperature scales that are commonly used are, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, और फ़ारेनहाइट स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक. नाउ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है. एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो कोल्डेस्ट है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो द हॉटेस्ट है इन द थर्मामीटर. 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बर्फ जम जाती है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉइलिंग हो जाती है. सो इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट. Now the Celsius scale is also called the centigrade scale. ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलते हैं? जैसे ये वाला है, so it's 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, and it is marked from 0 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री सेल्सियस. अब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है. नाउ वाटर फ्रीजेज एट, अभी हमने पीछे किया था या तो 0 डिग्री सेल्सियस पे या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड व्हाट्स द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस? इट इज 37 डिग्री सेल्सियस, एंड इन फ़ारेनहाइट इट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर्स दिए गए हैं वो आप थर्मामीटर पे मार्क कर लीजिए. कैसे? जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, सो दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस. यू कैन मार्क इट 100 डिग्री सेल्सियस. नाउ यू हैव टू फिल इन द फॉलोइंग टेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. अब क्या होता है यहाँ पर, हमें एक फॉर्मूला है हमारे पास कि जितना भी डिग्री फ़ारेनहाइट हमें दिया हुआ है उसमें से 32 अगर हम माइनस करेंगे तो R निकल आएगा, और R को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से तो डिग्री सेल्सियस निकलाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम A पार्ट लेते हैं सो इट्स 35 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो पहले हमें R निकालना है, तो 35 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 3. एंड व्हाट इज 3? R इज 3, एंड टू फाइंड आउट डिग्री सेल्सियस वी विल मल्टीप्लाई 3 by 5/9 which comes out to be 5/3, and if we convert it into decimals it will be 1.66 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब इसमें अब जैसे सेकंड वाले में आपको कैसे निकालना है? 40 minus 32 is 8 is our R, right? 8 multiplied by 5/9 is 40 by multiplied by 9 divided by 9. So 9 4s are 36. So this is 4.44 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो सिमिलरली जैसे 90 का क्या हुआ?
90 minus 32 is 58. So 58 is our R, and 58 multiplied by 5 by 9. So this will be 32 degrees Celsius. Now rest you are going to convert for yourself. अब हमारे पास टेबल 2 है जिसके अंदर हमें डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. अब अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस है तो हम पहले R कैसे निकालेंगे? बिल्कुल जैसे ऑपोजिट ऑफ द लास्ट मेथड दैट वी हैव डन, कि डिग्री सेल्सियस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से तो आ जाएगा हमारा R, और फ़ारेनहाइट निकालने के लिए 32 प्लस R इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट. सो फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 9/5 का मतलब हुआ 18 इज आर R. And if we add R plus 32, so it comes out to be 50 degree Fahrenheit, right? Now for 30, it will be, and 54 plus 32 is our degree Fahrenheit. For 40 degrees, it is 72 is our R, and 104 degree Fahrenheit is the conversion. Rest you are going to try for yourself. Now here there are two scales given, degree Celsius and degree Fahrenheit. You have to measure the temperature and write it. So it is in Fahrenheit, it is 60 degrees Fahrenheit, or in Celsius if you have to write, so it is around 17 degree Celsius, right? So here it is 30 degree Fahrenheit, or you can say it is minus 1 degree Celsius. 10 degree Fahrenheit, or it is minus 12 degree Celsius. Now this is 90 degree Fahrenheit or 33 degree Celsius. So these are the approximate in Celsius. For exact, you can use the formulas and convert it into Celsius. So this is all in the chapter of temperature. Hope you have understood that how do we read and how do we convert the temperature into degree Fahrenheit and degree Celsius. So keep learning, keep practicing. Bye-bye.